The voice is not. तो शीतल, the audibility gone. आप mute हो गए क्या? Okay, ma'am, it's audible now? Now it is okay. Okay. So, good afternoon to everyone. Thank you all for finding the time and joining the today's webinar. The Department of Pharmacy, Meerut Institute of Technology, Meerut, welcomes you all in the webinar on Women Health Awareness, which covers the topic breast cancer. I, Sheetal Singh, the coordinator Women's Cell DPMIT, feels myself privileged to introduce today's speaker, Dr. Neeta Kumar. Dr. Kumar did her MBBS from the Kanpur University and her post-graduation from the KGMC Lucknow. Presently, she is working as a scientist E, Division of Child Health, Reproductive Health and Nutrition, and Innovation and Translational Research in ICMR Delhi. Dr. Neeta has a vast experience in the field of health and nutrition, especially with the respect to the women and the child. She has almost 25 years of experience in the field and also offered her services with the various organizations like Lady Harding Medical College Delhi, Kanpur Medical College, Lucknow Medical College, Rajiv Gandhi Cancer Hospital Delhi, Batra Cancer Hospital Delhi, AIMS Cancer Division Delhi. As far as the research expertise considered, she has published more than 50 research papers in the various journals of national and international repute. She is also a government certified yoga instructor, art of living teacher for the happiness and youth leadership training. She is a winner of many prestigious awards and accolades. With these words, I would like to invite Dr. Neeta Kumar to share her experience toward the today's topic of the webinar. Now the mic is handed to you, ma'am. Please welcome. Thank you, Dr. Sheetal, giving me opportunity to be with you all. I'm happy seeing good attendance here. I will begin with the round of self introduction. How many of us are students and how many are faculties in this group? If I am able to know, it will be better to it will better conversation level will be at that level. How many of us are student in this group? Students can Approximately. unmute the mic and see the number. Actually, ma'am, I can answer. Yes, Tarun. Actually, ma'am, the number of students is more than the faculty members. Okay. So, So youngsters comprise larger group. So I will start with the problem of youngsters first. Um, as a, as a women, we should be aware about what is physiological and what is abnormal, and what is normal physiologically and what is abnormal. Then it is very easy to define morbidity and be aware and to be able to address that problem. So what is physiological in the women system is a hormone system which stimulates ovary to generate ova and to prepare endometrium and lining of the uterus to host a fertilized egg, to host a child, a new life. And if does not happen within the 14 days of egg expulsion, then the shedding of intrauterine lining is called menstrual cycle. So this is a normal phenomena. This carries some blood and some tissue, and it exposes the endometrial tissue of uterus to various infections also. And this has been a cause of heightened risk of cervical cancer among women in India, because many um, uh, births, giving birth to many child, multiparity, poor hygiene, local genital poor hygiene, which happens many a times due to lack of water, lack of sanitation facility, lack of toilet facility in our interiors, especially in rural and slum areas.
So around 10 years back, cervical cancer was the topmost cancer among the women in India. Now breast cancer has taken over with the improvement in hygienic practices and reduction of fertility. Uh, and hygiene during sexual activity, hygiene during defecation and menstruation, hygiene during the birth giving process. So all this has led to reduction in the papilloma virus 16 and 18, which was mostly found responsible the virus irritating constant. What is cancer? To begin with, first the origin of cancer comes from constant irritation. When a normal cell turns arrogant, that I will not serve any purpose, I will just create ruckus, I will just create pressure, undue pressure, and I will be of no use to anybody, to body which hosts me, then it turns as cancer. It is called as cancerous cell, which is abnormally, uncontrollably growing without contributing to the normal function, like in liver. Once liver cell which is not serving the purpose of liver, storage of food, generating enzymes, then it is creating a bulk of tissue which is of no use, but creating unnecessary bleeding, unnecessary pressure into the surrounding tissues. So similar happens in the genital organs also, in breast or anywhere in the body when there is a constant irritation. First of all, this irritation may be coming from irradiation, abnormal radiations, genetic predisposition, virus or bacterial infection, constant unhygienic conditions, environmental pollution, and our lifestyle, our body environment, our homeostasis in the body. So these are some known factors which creates an unnatural environment for the normal cells, and due to that some normal cells turns uncontrollably growing and serving no normal function of that organ. So this is called cancer, and the property of this abnormally growing, uncontrollable and useless cell is that it spreads through vessels. So metastasis happens once the cancer cell is created inside one organ. It travels up to certain extents, it grows locally, and when it becomes around about size of approximately more than 1 centimeter, then it is vulnerable to be metastasized through vessels to different organs and create the similar kind of useless uncontrollable growth in that area, where it finds some host environment. It may go to bone, brain, liver. Commonest metastatic sites are these organs. So stages of the cancer are defined according to the size of that abnormal tissue. If it is if it is only dysregulation or undifferentiation, not completely, it is not completely termed as cancer cell and multiple nuclei within the cell, then it is called carcinoma in situ, where it is having no size but the changes have been started. When it is coming to size of 1 centimeter or so, it is visible or it can be palpated, then it is called stage 1A. And up to 2.5 centimeter size, it is stage 1 only. More than 2.5 centimeter size, generally as per our body size and circumstances, it is localized. If it is more than 2.5 centimeter, up to 5 centimeter growth is termed as stage 2, and more than 5 centimeter growth is stage 3. And if it is metastasized even at less than 2.5 or 2 to 5 centimeter, it at any stage, if it has metastasized to another organ, it has traveled along the vessels from the primary site of origin to the any other organ or secondary site of tissue hosting, then it is termed as stage 4. Even though the size of original tumor is small,
if it is has metastasized, and if it is affecting neighbor 3-4 groups of family of lymph nodes, then it is called stage 4. So the treatment is also depending on the stages of this tumor. When in case of cervix, what happens when in situ cancer is there, it can be treated by acetic acid application locally, and it is sorted. The arrogant cells can be killed by simply applying acetic acid swab, and it is killed. If it is up to 2.5 centimeter, then local operation, a local excision of the tumor along with the margin, safety margin, so that the excised tissue has no tumor cell in it. Simple excision surgery is good enough. Even up to stage 2B, it is operable. After 2B, it is not operable because the lymph nodes and the distant organs start affecting, have more chance of getting affected. So it brings out role, it brings in role of chemotherapy and radiotherapy. What happens in chemotherapy? The circulating cancer cells are killed. The fast duplicating cells, in which the genetic material is fast replicating, that those cells are more vulnerable to these alkylating agent, which breaks the multiplying chromatins. The multiplying chromatins are broken, then cell cannot be divided. So those cells who are multiplying at fast speeds get more affected, even though some normal cells are also multiplying at the time when chemotherapy or alkylating agents are given, but more cancer cells are killed during these chemotherapy sessions. So overall reduction in cancer cell happens more than the normal cell killings. Side effects happen due to the normal cell killings. And radiotherapy acts similarly, breaking the chromatin material inside the nucleus, which is which is replicating at fast speed. It breaks down that replicating material, so the cell is unable to divide. But again, radiation carries some risk of killing the normal cells, adjacent tissue, normal tissue, and normally dividing cells also. So chemotherapy and radiotherapy carries their side effects on the normal tissue also. Coming to the prevention of the cancer, some upcoming therapies are under research, in which gene therapy, vaccines towards various infections, other protections are under research. Still they are under research and have not been proven completely. So what is best in our hand is prevention. You will be surprised, cancer is a preventable disease. कैंसर को हमने अपने आप बनाया है, कैंसर को रोका जा सकता है और बहुत इजीली रोका जा सकता है. कैसे? हम अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को इन्फ्लेमेशन फ्री रखें. क्रोनिक सबसे इजी, जैसे हम लोग मुंह के कैंसर में क्या सबसे ज्यादा कॉमन है? टोबैको, अल्कोहल. एंड व्हाट इरिटेट्स माउथ म्यूकोजा constantly? What is irritating to the mucosa of mouth causes later or sooner a cancerous tissue. Similarly is with other organs also, like in case of cervix or ovary, constant humiliation or constant hormonal disbalance or constant polluting agents we consume leads to the risk of cancer. Sometimes we think कि हम तो बहुत अच्छे से साफ सुथरा खाना खाते हैं, जिम भी जाते हैं, तो और नॉन वेज भी नहीं खाते हैं, which exposes us to the more risk of cancer. How does non-vegetarian diet alcohol acts as a carcinogen? There are many chemical carcinogen also, but there are some carcinogen in our food also. आप अपनी intestines की जो length होती है, हमारे पेट की जो आंतें होती हैं, उसको अगर आप पेट काट के लंबा लंबा ऐसे फैला दें, तो कितना लंबा होता है intestine की length? How many of us know? What is the length of our intestine, starting from duodenum to sigmoid colon or rectum? It is 9 meter. Yeah, 9 मीटर लंबा होता है ना एक आपका पूरा बड़ा कमरा, हॉल
पूरा इतना स्ट्रेंथ हो जाए ना, इतना लंबा हमारा इंटेस्टाइन होता है। तो इसमें हम जब फल और सब्जी खाते हैं तो कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में? 3 से 4 घंटे। और दाल रोटी खाते हैं तो कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में? 7-8 घंटे। और अगर हम नॉन वेज खाते हैं, लाइक एनिमल प्रोटीन विच इज नॉट the protein which is not coming from natural resource, it is some living being, animal resource, that protein is hard to digest in our body system of our body. Like our teeth are not made to pierce or bite flesh. जैसे चीते के, शेर के और वुल्फ के आप दांत देखोगे तो उनके कैनाइन टीथ काफी बड़े होते हैं, and which is not there in our case. So our teeth and our intestines are not made to digest that animal origin food. Still, if we eat that food, what happens to the intestine? It takes 72 hours to digest it. जहां हम 3-4 घंटे में अपना नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पचा लेते हैं, 7-8 घंटे में अपना दाल, लेकिन एनिमल प्रोटीन को हम पचाने में लेते हैं 3 दिन, 72 hours. So when at body heat, something is rotating within your body at your body heat and in the process of digestion, what it will produce? आप देखो गर्मी के दिनों में दाल को आप फ्रिज में रखना भूल जाओ, 2 घंटे के लिए दाल खुली रह गई गर्मी में, तो ये रॉटन हो जाती है ना, उसमें से इट इज नॉन एडेबल, इट बिकम्स रॉटन। और हमारे बॉडी के अंदर 72 आवर्स बॉडी की हीट पर जो चीज सड़ रही है तो वो क्या देगी हमें? इसीलिए बहुत सारी स्टडीज ना छपी हुई हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, टॉक्सिन्स and various free radical injuries happen when we eat non-vegetarian diet or consume alcohol. So this is injury to our inner system. We are causing injury to our inner system. अभी ICMR की एक लेटेस्ट बुक छपी है जिसमें हमें पता चला कि 6 times बेटर प्रोटीन इनटेक होता है मिलेट्स एंड जो हमारे स्टेपल फूड होते हैं ना, मिलेट्स है और ज्वार, बाजरा, रागी, many others, 6 times more protein than egg or any animal origin protein. So one way of preventing our system from humiliation is to eat healthy. एंड हेल्दी ईटिंग में हमें और क्या प्रिवेंशन के लिए पॉइंट्स मिल सकते हैं? वी ऑल नीड एनर्जी टू सर्वाइव, है ना, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनर्जी एंड देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी. This I have learned from Art of Living course. There are 4 sources of energy. One is food, second is our breathing, our breath, third is our knowledge, and fourth is sleep. So we are talking about food currently. The first source of energy is food and water. How do we eat and what we eat and how do we drink and what we drink matters a lot, है ना, to make our body susceptible for cancer. So अभी आप आजकल के टाइम में आप देखो लेडीज, गर्ल्स में, एडोलेसेंट गर्ल्स में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं. यू नेम इट एंड इट इज देयर, है ना. PCOS कितने लोगों ने सुना है? पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी गड़बड़ा जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, हेयर्स आ जाते हैं, हेयर एंड देयर, हर्सुटिज्म, फैटी बॉडी and low metabolic or some emotional problem also, because homeostasis बायोकेमिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं तो माइंड का सेटअप भी चेंज होता है. माइंड का सेटअप फूड से कनेक्टेड भी होता है. ये एक थोड़ा केमिकली वेरीफाई करना इजी नहीं है, लेकिन आप देखो जिस दिन आपने बहुत अच्छा हेल्दी फ्रेशली कुक्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का खाना खाया है, हाउ डू यू फील दैट डे? फ्रेशली कुक्ड दाल चावल और फ्रेशली कुक्ड रोटी सब्जी एंड अंकुरित चना दाल एंड सैलेड खाया, उस दिन हाउ डू यू फील? योर एनर्जी लेवल, it is elevated and it is creative, it is in the mode of positive thinking. And when you eat something like रात का रखा रोटी सब्जी या बहुत पुराना पकौड़ा खा लिया रखा हुआ, मसालेदार कुछ खा लिया, है ना, चटपटा छोला भटूरा टाइप्स, तो कैसी होती है एनर्जी की लेवल? चिड़चिड़ा होता है, एरोगेंसी आती है, वी आर नॉट इजी टू एक्सेप्ट
द नॉलेज वी आर गिवन, है ना, क्लास में भी मन नहीं लगता, बिना बात के लड़ते हैं। आपसे भी कोई बिना बात के लड़ने आता है तो आप बोलते ही हैं कि क्या खा के आए हो जो बिना बात के लड़ रहे हो। तो माइंड और फूड का जो कंपोजिशन होता है उसका काफी कनेक्शन है ना। when you eat non-vegetarian diet or consume alcohol or something addicting, what happens, we feel like lying down, sleeping all the day, we don't want to get up or do anything. So lethargy and alas is the feature of that food. So food is related to mind, है ना। एंड एक वर्स है कि जैसा होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, and it is true. You can test it and check it on your own. कभी ऐसा खाना कभी वैसा खाना, and then see how what is happening in your mind. Apart from mind, our activity, body homeostasis and chemical changes also are affected by this food composition. एंड ब्रीदिंग टेक्निक अगर हमारी इंप्रूव होती है, लाइक अभी कितना ज्यादा रिसर्च इसमें पब्लिश हुआ है, आप गूगल में टाइप करना सुदर्शन क्रिया, उसमें जब ब्रीदिंग टेक्निक सिखाते हैं उससे कितना नेचुरल किलर सेल्स इंप्रूव होती हैं, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। कैसे एक ग्रुप में एक रिसर्च नॉर्वे से पब्लिश हुई थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग उसमें देखने को मिला। अभी कैंसर मैनेजमेंट में तो हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग अंडर रिसर्च ही अभी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल नहीं है। जीन्स को जो वल्नरेबल जीन्स है उनको कट कर दें, हेल्दी जीन्स इंजेक्ट कर दें, फिर उसको इंजेक्ट करें कैंसर के लिए जो वल्नरेबल लोग हैं उनमें, फिर प्रिवेंट कर सकें क्या, ये तो अभी अंडर रिसर्च है एंड इट इज ऑलमोस्ट फेल्ड। बैक्टीरियोफॉज यूज करके जेनेटिक इंजीनियरिंग ट्राई हो रहा था बट इट इज गेटिंग नो रिजल्ट। बट सुदर्शन क्रिया ग्रुप में नॉर्वे के एक साइंटिस्ट ग्रुप ने रिसर्च किया, एक ग्रुप को जिम कराया, दूसरे ग्रुप को सिंपल योगा और तीसरे ग्रुप को सुदर्शन क्रिया सिखाया। दे फाउंड दैट पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स जो हमारी इम्यूनिटी के लिए होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी में होती है ना, जब फॉरेन वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होता है तो अवर बॉडी नीड्स अ डिफेंस मैकेनिज्म टू एंगल्फ दोस फॉरेन बॉडी। तो वो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो एक्यूट इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। तो उसमें जीन्स के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा मिले कंपैरेटिवली योगा एंड जिम वाला ग्रुप, सुदर्शन क्रिया ग्रुप में expression of genes were more in polymorphonuclear lymphocytes. So the immunity was improved in Sudarshan Kriya group. That makes our breathing technique a tool of do our genetic engineering possible. So breathing is such a strong tool and सभी लोग सांस लेते हैं, फ्री में लेते हैं, है ना, उसके लिए किसी को पैसा तो नहीं देना पड़ता। how much we pay for air we breathe, हाँ, गैस के सिलेंडर के लिए तो पे करते हैं, अपनी सांस की हवा के लिए हम नहीं पे करते ना, फ्री में मिलता है। एंड इज द फर्स्ट टास्क व्हेन वी केम टू दिस अर्थ, व्हाट डिड वी डू फर्स्ट, व्हाट वाज आवर फर्स्ट टास्क, दिस वाज द फर्स्ट टास्क, अ ब्रीदिंग इन एंड स्टार्ट क्राइंग। एंड व्हेन वी लीव दिस वर्ल्ड, नोबडी इज गोइंग टू स्टे ऑन दिस अर्थ फॉरएवर, है ना, एवरीवन इज, यहाँ से कोई बच के जाने वाला नहीं है। So what will be the last task when we leave this earth? Will be breathing out and never coming back to the inhalation process. So this will be the last task when we leave this planet. So throughout the life we continue breathing, but when we are aware about the breathing process is when we are running to escape a dog in the street. गली में कुत्ता पीछे पड़ गया और हमें भागना पड़ रहा है, या लिफ्ट खराब है, 5वें माले तक चढ़ के जाना पड़ा है, then only we realize that there is a lung we have and we breathe, है ना। So awareness के साथ breathing और एक टिपिकल पैटर्न के साथ और डिफरेंट पैटर्न्स के साथ जो हम ब्रीदिंग करते हैं, that can change our genes, not only simple chemical. There are 70 research papers in which it is proven that there are chemical changes at the level of cortisol, prostaglandins, bradykinins, natural killer cells, and various other things. But at genes level, it is also proven. So our breathing is such a strong tool; it can change our genes also. Na? So third source of energy is our knowledge. When we attend a good session or a good party or a group of जो friend circle है उसमें जिसमें सब
बहुत अच्छा क्रिएटिव कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उस मीटिंग से आप बात आते हो वापस, तो हाउ डू यू फील? योर एनर्जी लेवल्स आर अप देन, है ना? And you watch a film which is full of violence, full of negativity, full of scandals and conspiracy, है ना? सब एक दूसरे को मारने के षड्यंत्र कर रहे हैं, चालें चल रहे हैं, and lot of violence is there, bloodshed and all that. So how do you feel while coming out of that movie? ऐसी पिक्चर देख के आप वापस आते हैं, फिर कैसा लगता है बॉडी में? लो फील होता है। हाँ, सो एनर्जी, our body energy also depend on our knowledge level, the our company, what company are we in, and if we are in bad company which is always discussing or conspiring against destroying everything, है ना? We let's not create anything new, we will destroy what is there. If you join that group, your energy level will be down. And if you join the group which is creating new things, which is innovating various ideas, which is experimenting with new things, want to create something good, then your energy level will be different. So your company or your knowledge level also changes the body energy level. And the sleep, if you sleep 6 to 8 hours per day, then it is energizing your body and rejuvenating your body energies. And if you are sleeping less or more than this, both ways it is harming your energy level. Sometimes you do a whole night party, or sometimes you could not sleep because of a marriage, है ना? कोई शादी है घर परिवार में, रात को सो नहीं पाए, जगराता था, रात को सो नहीं पाए, तो दिन भर कैसा रहता है बॉडी का एनर्जी लेवल? इट इज डाउन, है ना? सो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, is it clear na? 4 sources of energy, everyone is clear about the 4 sources of energy. So how much and what type of energy we provide to our body affects our body environment, our body stress level, our body homeostasis, normal environment of the body. Apart from that, there are external issues also which we cannot control, like pollution in the air, in the water and the soil, but they also affect our body environment, and most of the time responsible for cancer, especially along with other metabolic disorders. These external factors also affect our occurrence of our body suffering from cancer. So this is about cancer, where we can have we have major factors which we can control, and some factors are there which we cannot control. So we have tools also for management of the cancer, है ना? We have very efficient tools, like getting educated and being aware. If there is any abnormal growth, abnormal bleeding, abnormal pattern of bowel habits, or abnormal pattern of temperature, abnormal pattern of body weight reduction or addition suddenly, then we should get alarm what is happening inside our body, should get screened for cancer also. Like in case of cervical cancer, if it is bleeding, irregular erratic bleeding, bleeding on touch is the first sign. When you touch a cervix mucosa, it starts bleeding, it's the first sign. And इजीली ब्लीड करता है, जो कैंसर का टिश्यू होता है उसको टच करते ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, सर्विक्स के केस में। ब्रेस्ट के केस में क्या है, आप अगर फ्लैट हैंड से अगर आप रोटेट करते हैं अपना फ्लैट, इसको अगर आपने मोड़ दिया तो आप यू विल फील लॉट ऑफ नोड्स एंड नोड्यूल्स, है ना? देन यू विल बी कंफ्यूज, ओके कोई ग्रोथ हो गया है, कुछ तो एबनॉर्मल टिश्यू है। नो नो नो, इट इज नॉर्मल galactoses also, so they cannot be always cancer. If the flat hand feels some growth, है ना, you rub your skin with flat hand and you find something hard, then only you should inspect it for FNAC. You should go for FNAC, fine needle aspiration cytology is the golden standard till date to confirm the tissue is normal or some infection or some cancer. To differentiate between these three, FNAC, fine needle aspiration cytology or tissue biopsy, and see it under microscope is the gold standard till date to confirm whether the tissue is infectiously abnormal or cancerously abnormal or
something else is there, some parasite is there. So microscope still is the gold standard to confirm the diagnosis in case of breast tissue, or in case of सर्विक्स पैप स्मीयर, वही टिश्यू साइटोलॉजी है, सेल्स लेना है, माइक्रोस्कोप में देखना है. इफ इट इज मल्टीप्लाइंग सेल्स, मोर प्रोपोर्शन ऑफ मल्टीप्लाइंग सेल्स, मोर न्यूक्लिक एसिड मटेरियल, then it is confirmed it is a cancerous tissue. The cancerous changes has started coming in. And सेकेंड स्टेज में क्या आता है कि उसका पूरा बॉडी का स्कैनिंग करके कि कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है कैंसर का, है ना, कौन सी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, कि कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व, जो कॉमन साइट्स होती हैं स्प्रेड की, मेटास्टेसिस की, उनको भी स्कैन करते हैं, ब्रेन, लिवर और होल बॉडी. पैट स्कैन भी आ गया आजकल, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पहले हम लोग कराते थे, आजकल पैट स्कैन से सब कुछ साथ में ही हो जाता है. वायबल टिश्यू जो होते हैं, 16 FDG ग्लूकोज अपटेक अगर ज्यादा है तो इट means something is wrong at that part of tissue. अभी एक ICMR supported research भी हो रही है जिसमें इन्फ्लेमेशन और कैंसर में भी डिफरेंशिएट कर पाएंगे. 16 FDG अपटेक अगर बढ़ा हुआ है तो it can be because of inflammation, infection also, as it can be because of cancer also. So इसमें भी डिफरेंशिएट करने के लिए एक नया टेस्ट अभी डेवलप कर रहे हैं. बट एक जनरल आइडिया पैट स्कैन से लग जाता है टिश्यू साइज का, और इन्फ्लेमेशन की साइड्स का, और मेटास्टेसिस की साइड्स का. जब ये स्टेजिंग हो जाती है, कंफर्म हो जाता है कि स्टेज 1 की डिसीज है, देन वी गो फॉर सर्जरी. जब कंफर्म हो जाता है स्टेज 2 की डिसीज है, देन वी गो फॉर सर्जरी. स्टेज 3 में भी कंबाइन इट विद कीमोथेरेपी, स्टेज 4 में भी गो फॉर रेडियोथेरेपी आल्सो. So management is easy, और results are good up till stage 3. स्टेज 4 के बाद फिर पैलिएटिव मैनेजमेंट होता है. कैंसर पर हमारे पैलिएटिव मैनेजमेंट में योगा, ध्यान, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया का हमने रिसर्च किया था एम्स में, जिसमें पैलिएटिव केयर यूनिट जो पेन मैनेजमेंट करती है और पैलिएटिव थेरेपीज देती है, उन्होंने 150 पेशेंट, 150 ब्रेस्ट कैंसर एडवांस स्टेज, जिनका सर्जरी होने के बाद, कीमोथेरेपी होने के बाद, मेटास्टेसिस की वजह से और कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था, simply the pain management with morphine was being given. And in those cases, among 75 patients, we taught them Sudarshan Kriya, and among 75 patients, we did not added Sudarshan Kriya, only morphine and other pain management strategies as per gold standards of the protocol. Then we found what? Cortisol was reduced, pain level was reduced, survival was improved. How much? 3 times in the Sudarshan Kriya group. So this was the power of that breathing technique. This I am not saying just because that I am art of living teacher also. I am a researcher also, and I don't believe until I see it and I test it and experimentally prove. So we were amazed to see that prostaglandin A2 was high among the Sudarshan Kriya group, which shows that the patient was more physically active, patient was having more fighting capacity to cancer. So this is all about management and risk factor in brief. We may have some questions also. If there is any question, I will take question. Otherwise, I will continue to talk. Dr. Sheetal. Students, can you ask the question? अगर किसी का कोई question है तो आप पूछ सकते हैं. Yeah, we were discussing that complications during pregnancy and child care can be part of this discussion. We thought that it can be taken in the question answer session. So whatever is there related to the women health especially, we can take up the questions on that, because women cancer is part of this talk. It can be anything which is related to the women health, especially either it is physical, emotional, professional. There are many aspects to our personality. We are not just body. We do have a mind, we do have an intellect, we do have a memory, and we do have an ego, and we do have a self also. So is there any question? किसी का कोई question है?
They can raise your hand. अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. Otherwise, I will share one of my experience. मेरा खुद का experience share Good morning, करूँगी. ma'am. हाँ. Please continue. हाँ हाँ. Hello. Good morning, ma'am. Yeah. Ma'am, this is Divangi Mehra. दिवांगी. I'm second year student. हाँ. Ma'am, actually my question is that कि कैंसर जेनेटिकली हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो क्या जो मतलब प्रेग्नेंट वुमेन है उसके बेबी को रिस्क हो सकता है कैंसर से, अगर उनको कैंसर हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो बेबी को नहीं होगा. बेबी को कंटेजियस, हाँ, कंटेजियस डिसीज नहीं है. हाँ, जेनेटिकली बच्चा मोर प्रेडिस्पोज होगा, उसका स्क्रीनिंग में चेक किया जा सकता है, लेकिन माँ को हो गया इसीलिए बेबी को होगा ही होगा. ये सिर्फ ब्रेस्ट के और ओवेरी कैंसर के केसेस में देखा गया है टू सर्टेन एक्सटेंट कि माँ को या मौसी को है तो बेटी को हो सकता है, गर्ल्स में हो सकता है. दे आर मोर प्रेडिस्पोज टू बी they are more vulnerable for breast and ovarian cancer if their mother or masis or nani having suffered for that disease. क्योंकि उनको कुछ जेनेटिक मेकअप और कुछ लाइफ स्टाइल दोनों ही उनका सिमिलर होगा फिर, है ना. जेनेटिक मेकअप भी, लाइफ स्टाइल भी, बॉडी का एनवायरनमेंट भी वो सिमिलर होगा, इसीलिए दे आर मोर वल्नरेबल. लेकिन कंफर्म नहीं होता है कि ऐसे ही होगा, जरूरी नहीं है. अभी BRCA1 BRCA2 जीन्स का भी कनेक्शन देखा गया कि जिनकी मदर के या नानी के या मासी के BRCA1 BRCA2 जीन्स होते हैं क्रोमोसोम 22 पर वो पॉजिटिव होते हैं अगर, तो बच्चों में ज्यादा, लड़कियों में ज्यादा वल्नरेबिलिटी होती है. लेकिन कंफर्म नहीं है, उसमें भी 20% है कि अगर पॉजिटिव है तो 20% मोर रिस्क है, बट कंफर्म उसमें भी नहीं है ना. देयर आर मेनी इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल इलनेस, नॉट ओनली. अभी विटामिन डी का कितना रोल मिला है, जो ये BRCA1 BRCA2 जीन्स हैं उसके बगल में ही विटामिन डी का जीन्स होता है. विटामिन डी अगर आपका कम है बॉडी में तो यू बिकम वल्नरेबल फॉर ब्रेस्ट कैंसर इवन दो योर मदर एंड योर मासी एंड नानी वर ओके. But vitamin D in your body is low, then you are vulnerable for that cancer, because the more vitamin D level we have in body, the more physically active we are, more sun exposed we are, lesser we have chance for cancer in Asian regions. In Western countries, what happens? Sun exposure increases risk of skin cancer in Europe and America, so they avoid sun. But in our region, sun is protecting us from cancer, and it is not causing us cancer, skin cancer, because we have protective melanin. So melanin protects us from skin cancer and protects us from breast and ovarian cancers also. So better the vitamin D level, lesser is the chance of getting cancer. So this is a multifactorial illness. You know, role of our lifestyle, food, sleep, body environment, level of pollution in which we are living, what we eat and what we drink, many factors, not only genes. Yeah. That is why. And cancer is not contagious disease. It does not spread by touching the patient or being in contact with the patient. So a child will not have cancer if the mother is detected with cancer during pregnancy. Ma'am, एक question प्रियंका का है. प्रियंका, you can unmute your mic and ask the question, please. प्रियंका. Okay, तरुण. हाँ, तरुण बोले. तरुण, अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Ma'am, does mutation also have some role in curing cancer? Does some research is going on this? म्यूटेशन पर? मैम म्यूटेशन से क्या मैम कैंसर क्योर हो सकता है? कोई रिसर्च अगर कैंसर क्योर, हाँ, म्यूटेट कर दे, जीन्स को क्लिप कर दे, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग. यस मैम. जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत कोशिश है, बैक्टीरियोफॉज यूज किए हैं, कुछ वायरियन यूज किए हैं to inject the healthy gene and cut the predisposing gene, but it has been failed completely. That is why I mentioned that our breathing is very good tool to make us genetically
improved person, है ना. Our other जो जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करके जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड म्यूटेशन की कोशिश चल रही है, वो अभी फेल हो रही है, उसमें बहुत सक्सेस नहीं है. देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसर्च showing but in that process of injecting healthy genes material, there are many other mutations getting injected, and it's not completely safe. No, it's not completely safe, because one gene is not working on one RNA or mRNA or miRNA. It is producing multiple, it can be a part of multiple miRNA chain. One gene can be part of multiple miRNA chain. So if injecting one gene can affect, it does not affect only one pathway, it affects many other pathways. So by injecting one gene or cutting one gene may affect many pathways. So you never know what is what can go wrong in that method. That is why genetic engineering is getting not that successful results. But in Sudarshan Kriya pranayam breathing technique group, we are seeing genetic makeover improved on its own, improves on its own. So our vital forces, how we live, how we breathe, affects a lot and at our genes level. In this context, मैं एक और example बताती हूँ आपको. इस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो पेशेंट होता है, उसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ना स्टिफनेस आ जाती है, पैरालिसिस जैसा होना शुरू हो जाता है, पेनफुल होता है बहुत ज्यादा, टर्मिनली इल होती है ये इलनेस. HLA-B27 पॉजिटिव होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून. अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में होने के चांस अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर वो जीन्स कैरी कर रहे हैं, HLA-B27 कैरी कर रहे हैं, तो बच्चों में भी होने का चांस होता है. तो एम्स में एक ऐसा केस आया जिसमें मदर को HLA-B27 एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थी और पॉजिटिव था, और शी डाइड ऑफ दिस डिसीज. पेनफुल डेथ होती है, इसमें हम स्टीरॉइड या पेन किलर से थोड़ा बहुत सबोटेज कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट ही होता है, वो क्योर नहीं होता है. इट्स अ टर्मिनली इलनेस, टर्मिनल इल. And in the daughter, there was no expression of disease, genes of the disease. HLA-B27 पॉजिटिव था, बट एक्सप्रेशन जिन जीन्स से होता है, mRNA से होता है, वो एक्सप्रेशंस नेगेटिव थे. And she was practicing Sudarshan Kriya Dhyan Pranayam breathing technique. So this technique was found affecting genes. जेनेटिक लेवल पर आप काम कर, ये टेक्निक काम करी जेनेटिक एक्सप्रेशंस पे, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस पे. अभी इम्यूनिटी के मार्कर्स पर इसकी इतनी रिसर्च हुई है इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑन व्हाट इज वल्नरेबिलिटी ना, कोरोना के टाइम में. तो जिन लोगों ने सुदर्शन क्रिया ध्यान प्राणायाम टेक्निक सीखी हुई है, दे आर कम्बैटिंग द डिसीज easily rather than those who are not practicing it. So apart from that, there are many indigenous herbs, you know. अभी ICMR की रिसर्च में तो हमें मिला रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, प्लाज्मा थेरेपी and steroids. They are not effective in virus control, but our indigenous herbs, you know, Sitopiladi, Triphala, Bringraj, Pipali, comes in the name of Kabasura, Kudini, Siddha medicine. They are controlling the infection, जो symptoms हैं उसके, cytokine storm है, they are controlling it very very fast way. So इसमें एक नया एंगल भी कैंसर मैनेजमेंट में भी मुझे समझ आया कि जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से कैंसर होते हैं, उसमें से तोपलादी या ब्रिंकराज या पिपली, ये जो त्रिफला, इनका भी रोल होगा. तो आई वाज सर्चिंग रिसर्च एंड आई फाउंड इट हैपनिंग. इट्स पब्लिश्ड दैट जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है बॉडी के, उसको हम अपनी इंडिजिनस हर्ब्स से, इन मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और इट रिड्यूसेस चांस ऑफ गेटिंग कैंसर आल्सो. So there are lot of plenty of work on in terms of pharmacology and pharma therapy can be done to re-establish the role of and how fast it is acting. I was amazed to see 7 patients were cured within 2 hours. 2 गोलियां ली उन्होंने और 2 घंटे में ऐसे हो गए जैसे कुछ था ही नहीं. अदरवाइज उनको वेंटिलेटर लगाओ, ये लगाओ, कुछ जरूरत नहीं पड़ा. नो ऑक्सीजन डिमांड. They become completely all right within 2 hours of this giving medicine. No fever, no body ache, no breathing suffocation. So you people have a lot of research areas in which you can do research to find how breathing techniques affect body
chemical composition, how it react with the various medicines, है ना, indigenous medicines. अभी तो बहुत कुछ publish हुआ है, but you could always reinvent those all things and republish it. Research क्या है? Re and search, research, है ना. What is age old and time tested? You have to research. You have a huge task to research that and re-establish that. अभी Any sorry. other question, please? Priyanka? Good afternoon, ma'am. Hmm. Ma'am, I want to know what is the cause of PCOS? Multifactorial, na? Yeah. Lifestyle, pollution, our four sources of energy. If they are going haywire, na? Our food, our lifestyle, na? We don't do any pranayam or yoga. You run, you gym, that is your choice, but don't skip yoga and pranayam techniques. They also help rejuvenating body and you know, हार्मोनाइज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको किस तरह से हार्मोनाइज करता है. यूट्यूब पर आप टाइप करिए पद्म साधना, उसमें ना 15 आसनास का एक सीक्वेंस मिलेगा आपको. पीसीओएस के ग्रुप में एम्स की एक स्टडी हुई थी हमारी, आईसीएमआर फंडेड. उसमें उन्होंने कुछ पर्टिकुलर आसनास को स्टडी किया था, आसन को. तो उसमें मिला था कि स्ट्रेस भी कम हो गया और हार्मोन्स लेवल भी नॉर्मल आ गए थे. पीसीओएस का मतलब ओवेरियन सिस्ट भी रिड्यूस हो गए थे, बॉडी वेट भी कंट्रोल में आया, है ना. सो हार्मोन सिस्टम अपने ट्रैक पर आया था. पीसीओएस में क्या होता है, पूरा हार्मोन सिस्टम ही तो डिसबैलेंस हो जाता है. सो अगर हम अपने 4 सोर्सेज जो एनर्जी के हैं उसको अगर हम बैलेंस में रखते हैं तो पीसीओएस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. इसकी स्टडी में भी पब्लिश हुआ है और आप यूट्यूब में टाइप करना पद्म साधना, so you will find that 15 asana sequence and that has been proven very effective in controlling PCOS. So sleep है, lifestyle है, and environment है ना, हमारा food है, they are under control factors which can control our PCOS. So PCOS is a very controllable problem, है ना. और उसके लिए हार्मोन सप्लीमेंट से बेटर है कि आप अपने 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जीज पर काम करें, उसको बैलेंस में रखें. How do we and I am teaching this course, how do we keep our 4 sources of energy in balance. I am teaching this course from 28th January. 28 January I am a part of that team. एम्स के और भी प्रोफेसर्स हैं उस टीम में. So how can we join that? मैं लिंक शीतल जी को भेजूंगी. आप लोग मेरा फोन नंबर नोट कर लें. आप लोग मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं so that I can send you the link to join. It is 9313195247. My phone number is 9313195247. So in that course we are teaching how you can keep balance of your 4 sources of energies and move with very high and creative energies. You know, innovation. मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं अभी शेयर करने वाली थी कि मैं जब तक ये टेक्निक्स नहीं सीखी थी तब तक मैं सिर्फ नौकरी करती थी और घर का काम करती थी. तो सोचती थी आई एम द सुपर वुमन, I have arrived. I can manage my job well, I can manage my home well, I can serve my children and in-laws well, so I am a superwoman. I was thinking of that. But after learning these techniques, I am managing more than 3 times of those those projects. I am handling around 500 projects in innovation division, and a major task force study in on the basis of the National Digital Health Mission is announced currently by Government of India. And I am serving in slums and weekends, and I am teaching art of living courses also apart from doing all that what I am doing. So energy level high हो जाता है, focus high हो जाता है, creativity अच्छी हो जाती है ना. And then you find a group. The main thing is group. You find a group which is high on energy and creatively thinking, positively thinking, want to contribute something good towards the welfare of the society. So that is the major benefit of joining this workshop. That was a major benefit I felt joining those workshops. Now I have become teacher and I teach others also. So this is my favorite pastime now. टीचिंग अभी ऑनलाइन चलता है. ये ऑनलाइन 2 घंटे के लिए 3 दिन बैठते हैं हम लोग और पूरा टेक्निक सिखाते हैं सारा, हाउ टू कीप इट 4 एनर्जीज इन बैलेंस.
you can all join, be part of that workshop. You'll be very happy. And Shri Ravi Shankar ji will be teaching in this class. Special part of this workshop is 28th January की जो ये होगी class, इसमें Shri Ravi Shankar ji will be part of the teacher group. He himself will be teaching. So that is another branding. Any more questions? Any other question? Pratibha, please unmute your mic. Pratibha? हाँ Pratibha. I was wondering if the variation of the amount of melanin has anything to do with the cause of cancer. हाँ, और you know कितना मिसकॉन्सेप्शन है. हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट थी एक, वो बोली कि मैं तो बहुत प्रिकॉशन लेती हूँ जब से मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, और मैं तो अंडा खाती हूँ, रेड मीट खाती हूँ, और सूरज से बिल्कुल बचती हूँ, सन से तो मैं बिल्कुल दूर रहती हूँ, सनलाइट से. तो मैंने कहा ये आपको किसने बताया? तो वो बोली मैंने गाइडलाइन लगी देखी थी पोस्टर पे हॉस्पिटल में. तो मैंने कहा कौन सी गाइडलाइन, फोटो खींच के भेजो. तो उन्होंने वो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और जो कंपनीज होती है मेडिसिन की, उन्होंने वो लगाया हुआ था पोस्टर, कैंसर से बचाव का एक पोस्टर लगाया हुआ था. उसमें लिखा था धूप से बचे, अंडा खाएं, रेड मीट खाएं, और प्रोटीन रिच डाइट खाएं जिसमें अंडा और मीट हो, और ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, फिजिकली एक्टिव रहे, ये वो. तो मैंने देखा कि वो वेस्टर्न गाइडलाइन है ना, इंडिया में नहीं एप्लीकेबल होती है. इंडिया में हमारे पास मेलानिन है, वहां पर 0.2, हमारे यहाँ 0.02% स्किन कैंसर का प्रिवलेंस, 0.02%, और वहां 80% है कैंसर स्किन का, क्योंकि उनके पास मेलानिन नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए ना, सन अल्ट्रावायलेट रेज से जो प्रोटेक्शन मिलता है हमारे स्किन को, वो उनको नहीं मिला हुआ है. इसीलिए वो उन्होंने अपनी गाइडलाइन में लिखा अवॉइड सन. हमारे यहाँ तो मेलानिन है, वी हैव ओनली 0.02% प्रिवलेंस ऑफ स्किन कैंसर, सो वी नीड नॉट टू अवॉइड सन, है ना. द मोर सन इज बेटर, द मोर विटामिन डी, एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ विटामिन डी कम्स फ्रॉम सन एक्सपोजर. ये एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी. तो उसमें मिल्क है, कैल्सीरॉल सैशे हैं, विटामिन D3 के प्रिपरेशंस हैं जो बना के खा सकते हैं, और फिश ऑयल है, और सन एक्सपोजर है. ये चारों पांचों मोड का जो उन्होंने टेस्ट किया कि विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, देन सन कम एज फर्स्ट ना. सन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड मोर पैलिएटेबल. अगर और ज्यादा इसका रिसर्च देखना तो उसमें दिखेगा कि बाकी जो विटामिन डी के हम वो लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, उसमें एक लिमिट है, डिफाइंड है, उससे कम नहीं, कम भी हार्म करता है, उसके ज्यादा लेंगे तभी भी किडनी पर असर आता है और टॉक्सिक हो सकता है. लेकिन सन एक्सपोजर में कुछ टॉक्सिसिटी नहीं है, द मोर इज बेटर, है ना. एक मॉडरेट 20-25 मिनट का सन एक्सपोजर तो बहुत ही हेल्दी है और जरूरी है विटामिन डी मेंटेन करने के लिए. इसमें ब्रेस्ट कैंसर की स्टडी में ये भी मिला था हमें कि जिन लोगों को विटामिन डी कम था उनको रिकरेंस एंड मेटास्टेसिस ज्यादा हुए. विटामिन डी से कनेक्टेड है मेटास्टेसिस होना, स्प्रेड होना, दोबारा होना, है ना, वो सब विटामिन डी अगर लेवल कम है तो ज्यादा होता है. सो इट्स सो मच इम्पोर्टेंट. हमारा जो मेलानिन है कीपिंग अस सेफ फ्रॉम द स्किन कैंसर. सो बिंदास सन एक्सपोजर के लिए जितना आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, है ना, जितना आउटडोर एक्टिविटी पॉसिबल है, और सर्दियों के दिनों में तो यू विल एंजॉय सन लाइक एनीथिंग. या Stuti, unmute your mic and ask the question, please. हाँ स्तुति. Yes, ma'am. Why is breast cancer more common in left breast? ऐसा कुछ नहीं है. लेफ्ट ब्रेस्ट थोड़ा एक्टिविटी कम होती है ना बाएं हाथ की, दाएं हाथ इज मोर एक्टिव. द मोर एक्टिव वी आर, द लेसर इज द चांस ऑफ गेटिंग कैंसर. सो इफ द ये थोड़ा सा माइल्ड प्रिवलेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि लेफ्ट में ज्यादा हो जाता है, तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड इज नॉट एक्टिव दैट मच विच राइट हैंड इज डूइंग. तो अच्छा सर्कुलेशन होता है ना. सर्कुलेशन जिस बॉडी पार्ट में अच्छा होता है वहां से टॉक्सिन्स वॉश आउट करने की स्पीड भी अच्छी होती है. सो लेफ्ट इज मोर वल्नरेबल. इट इज नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड बट माइन्यूट डिफरेंस इज देयर. उसी तरह से लंग में भी है. जो फेफड़े हैं हमारे, हम सांस लेते हैं ना नॉर्मली तो अराउंड 0.5 लीटर हवा अंदर बाहर करते हैं, और हमारे फेफड़े की कैपेसिटी कितनी है,
लंग कैपेसिटी 5 लीटर है ना, हमारे एक ही 1 गो में हम 5 लीटर हवा अंदर बाहर कर सकते हैं, बट नॉर्मल ब्रीदिंग में हम कितनी करते हैं, ½ लीटर हार्डली। और उसी में अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हम 3-4 लीटर हवा अंदर बाहर करते हैं। तो जिन फेफड़ों के हिस्सों को कभी भी फ्रेश एयर नहीं मिली, वॉश आउट नहीं मिला कार्बन डाइऑक्साइड का, वहां टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, एंड दीज एरियाज इन द लंग बिकम मोर वल्नरेबल फॉर कैंसर, फॉर ट्यूबरक्लोसिस, फॉर वेरियस न्यूमोनियाज, है ना। तो प्राणायाम करने से क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े के हर ऑर्गन, हर पोस्टीरियर लोब और एपाइकल लोब में मेनली हमारा इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे वो टीबी के हो, चाहे वो कैंसर के हो, चाहे न्यूमोनिया के हो। तो इन हिस्सों में हम जो प्राणायाम टेक्निक और ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं, उनसे बेटर सर्कुलेशन जाता है, बेटर वॉशिंग आउट एंड मूवमेंट होता है। तो द मोर द मूवमेंट, द लेसर इज द चांस ऑफ गेटिंग infected or infested with cancer. Simple theory, but लेफ्ट राइट दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है ना ब्रेस्ट कैंसर के अकरेंस में। Okay, thank you, ma'am. Manjri ma'am, please ask the question. Okay. Hello ma'am, good afternoon. आफ्टरनून। मैम एक्चुअली मैंने कहीं जगह पे पढ़ा था कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अगर हम कुकुम्बर इंटेक करते हैं तो वो ओवेरियन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो ये इज इट मिथ और ट्रूथ? हाँ, मिथ है, मिथ है। एक्चुअली क्या है कि जितने भी हम फल सब्जी खाते हैं ना, उनके उनके ऊपर पेस्टिसाइड लेसिंग होती है। आप देखो जितने भी फार्मर्स हैं या मंडियां हैं, बड़े जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं, जब वो स्टोर करते हैं फल और सब्जियों को तो स्प्रे करते हैं ना, यस है ना, टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ दे स्प्रे। सो वो पेस्टिसाइड्स जब हम आजकल तो इतना ज्यादा हो गया है कि आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल के बाद भी पीसीओएस और सफर कर जाते हैं इससे। तो पेस्टिसाइड हैज बिग रोल। उससे हम एक सिंपल टिप से बच सकते हैं। जो भी हम फल सब्जी खाते हैं ना दिन भर में, उसको पानी के एक बड़े बर्तन में डाल के छोड़ दें। तो मोस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना। और उसमें अगर हमने थोड़ा सा ओजोन डाल दिया, ओजोनाइजर कुछ इकोएंजाइम जैसा कुछ, तो और भी अच्छा है। अदरवाइज सिंपल वाटर में आप 15-20 मिनट जो भी सब्जी और फल खाना है डाल के छोड़ दो, और फिर उसके बाद धो लो। हाँ, छीलने के बाद नहीं काटना, सॉरी धोना। छील लिया आपने, छील लिया ना फल को या सब्जी को, छील लिया, उसके बाद नहीं धोना। काटने के बाद तो बिल्कुल नहीं धोना, क्योंकि फिर विटामिन और सब बह जाएगा। लेकिन शुरू में उसको पानी में डाल दिया आपने, तो ऊपर से सरफेस पर जितना लेसिंग की गई थी उसको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड स्प्रे की, वो काफी हद तक डिसॉल्व हो जाती है। और आप हाँ सॉरी हेमा, मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वेदर वी शुड टेक द फूड हैविंग मोर कार्बोहाइड्रेट और लेस कार्बोहाइड्रेट। कल मैं एक प्रोग्राम देख रही थी टीवी पे, डॉक्टर शुद्धि प्रोग्राम आ रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट उस टाइम पे कम लेना चाहिए, बिकॉज जो भी डिजीजेस हमें, जैसे आपने बताया अभी पीसीओडीज वगैरह हैं, दैट इज बिकॉज द फूड वी टेक। तो कार्बोहाइड्रेट सचमुच कम लेना चाहिए या हम जो ले रहे हैं वो ठीक है, along with proteins and some other things? हाँ, यू नो ये बहुत ज्यादा फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना। जो भी मिल रहा है खाओ जी। जो भी अवेलेबल है खाओ। हाँ, एक्सेस में नहीं खाओ जी। वन मोर क्वेश्चन मैम, मैम वन मोर क्वेश्चन, सर्वाइवल कैंसर के लिए मैम अभी मेडिसिन और इंजेक्शन आने लगे हैं, तो मैम ये पूछना है कि ये कौन सी एज में, मतलब सिर्फ छोटा बच्चा या गर्ल्स में, कौन से एज में इसको लेने से इफेक्टिविटी बनी रहती है उस इंजेक्शन की? हाँ, 13 to 16 की एडोलेसेंट गर्ल्स में पेप करके, इसका नाम क्या है, इसके लेके आया ना जी। फॉर 14 and 16 जो स्ट्रेन्स हैं वायरस के, उसके वैक्सीन बने हैं। लेकिन उसके ना साइड इफेक्ट देखते हुए तो मेरा पर्सनल, अभी एम्स में तो इसमें काफी काम चल रहा है, वैक्सीन पर बहुत बड़ा ट्रायल है, और अमेरिका के कंपनी ने बनाई है वैक्सीन, तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी है गवर्नमेंट पे टू इंक्लूड दैट वैक्सीन इन द प्रोग्राम। बट उसकी सेफ्टी प्रोफाइल अभी भी बहुत डाउटफुल है ना, सेफ्टी प्रोफाइल, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि उसकी वजह से पैरालिसिस, नर्व टॉक्सिन की तरह काम किया उस वायरस ने। सो सेफ्टी प्रोफाइल काफी ड्यूबियस है। सो पर्सनल मेरा है कि हाइजीन, बेटर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस,
and better lifestyle practices is the best success rather than having vaccine for cervical cancer prevention. क्योंकि उसकी कॉस्ट आप देखो, अगर आप एक वैक्सीन देते हो तो 2 लाख में से एक लेडी का कैंसर सर्विक्स प्रिवेंट कर रहे हो, तो कॉस्ट आप देखो ना, 2 लाख लोगों को आपने वैक्सीन लगा दी, उसमें से आपने एक केस को प्रिवेंट किया ना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और अगर आपने 2 लाख लोगों को लाइफ स्टाइल चेंज और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस एंड गुड एनवायरनमेंट दे दिया, तब आपने कितना उनका ओवरऑल डिसीज प्रिवेंट किया, है ना, ओवरऑल डिसीज प्रिवेंट किया, और कितना उसका कॉस्ट आया। लाइफ स्टाइल चेंज इज नॉट कॉस्टली अफेयर, है ना, लाइफ स्टाइल चेंज इज नॉट अ कॉस्टली अफेयर, बट वैक्सीन इज अ कॉस्टली अफेयर, एंड हाउ मच इट इज प्रिवेंटिंग, दैट कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस शुड आल्सो बी डन। सो मेरा तो पर्सनल है कि जो वैक्सीन आई हैं, HPV वैक्सीन, वायरस को किल करने के लिए और वायरस के अगेंस्ट 14 एंड 16 स्ट्रेन को, वो एक लिमिटेड ग्रुप के लिए ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए मुझे लगता है इट्स माय पर्सनल, अगेन रिसर्च प्रो में भी है और कॉन्स में भी है ना। कुछ रिसर्च कहती है वैक्सीन लगाना चाहिए सारी एडोलेसेंट गर्ल्स को, कुछ रिसर्च कहती है कि कॉस्ट वर्सेस इफेक्टिवनेस एनालिसिस शोज दैट देयर इज नो नीड टू यूनिवर्सली वैक्सीनेट एवरी गर्ल to prevent cancer cervix. So if we can simply keep a hygienic environment, we can prevent equivalent to the vaccine cost, vaccine. So why to invest in vaccine, and which vaccine के साथ कुछ side effect भी आ रहे हैं, completely safe तो नहीं है ना, तो this versus this का दोनों research published है, तो ये थोड़ा पर्सनल चॉइस हो जाता है कि अगर कोई वैक्सीन लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, इट्स पर्सनल चॉइस, है ना, बट एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च करके ही अडॉप्ट करना। कोई भी प्रैक्टिस करो, आजकल तो स्कॉलर, गूगल स्कॉलर इज अ वेरी गुड मीडियम, पबमेड में जाओ, गूगल स्कॉलर में जाओ, यू फाइंड मेनी रिसर्च ऑन एवरी एस्पेक्ट, सो फाइंड मेक योर ओपिनियन ऑन रिसर्च बेस्ड। अगर कहीं गैप लगता है कि हाँ इसमें तो कुछ पब्लिश ही नहीं हुआ है, इसमें तो कुछ चीज किया जा सकता है, पहले से किसी ने रिसर्च नहीं किया है, तो यू फाइंड दैट एरिया ऑल्सो कि उसमें आप रिसर्च कर सकते हो, आप उसको गैप को फिल कर सकते हो, है ना। रिसर्च पढ़ते रहने से ये फायदा होता है कि आप एक तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं, दूसरा आपके पास एरियाज आ जाते हैं कि जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो उस गैप को फिल करने के लिए। थैंक यू मैम। मैम, हाँ गुड इवनिंग मैम। हम लोग सुने हैं बहुत जगह कि ऐसे माउंटेन्स एरिया में बहुत लोग होते, साधु बोल कुछ होते हैं, वो कैंसर्स का इलाज कर लेते हैं, जैसे कि हम वेस्ट बंगाल से माउंटेन साइड में कुछ आलू होते हैं, वो कैंसर से प्रिवेंट करते हैं। नहीं, आलू नहीं मैम, साधु ऐसे कि बाबा टाइप्स के लोग होते हैं, हाँ। कैंसर यहाँ पे हम वेस्ट बंगाल से, यहाँ बांकुड़ा में एक बांकुड़ा गांव टाइप का एरिया है, हाँ। वहाँ पे बहुत सुने कि वहाँ पे एक है वो कुछ वो जड़ी बूटी एंड ऑल से हाँ। कैंसर का प्रिवेंशन करते हैं, कैंसर का इलाज करते हैं, और हाँ। उनका वो अगल बगल के लोग को एक दो लोग को सुने भी कि हाँ वो गए थे एंड वो ठीक होके आ गए। ऐसा हाँ। बहुत जगह हम नाइपर गुवाहाटी गए थे, तो नाइपर गुवाहाटी गए थे मैम, वहाँ पे एक तो सेमिनार में गए थे, तो वहाँ पे भी इस बात के लेके एक मैम बोल रही थी कि ऐसा होता है कि माउंटेन्स पे बहुत ज्यादा जड़ी बूटी वैसा रहता है जो कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं कैंसर के ऊपर, तो वो लोग क्यों नहीं उनसे हेल्प लेते हैं कि जड़ी बूटी वगैरह के बारे में जान के कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए दवाई बनाते हैं या कुछ भी उसके ऊपर कुछ कोशिश करते हैं। कैंसर तो बहुत दिन से रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर, पर अभी भी पूरा तो इलाज नहीं निकल पाया है, तो क्यों नहीं हम लोग उनसे हेल्प ले सकते हैं, जड़ी बूटी या कुछ भी। हम लोग तो एलोपैथी हम फार्मेसी कर रहे हैं, तो हम एलोपैथी के लिए कर रहे हैं, पर मैम आयुर्वेदा या सिन्हा में कोई मेडिसिन अगर कोई बीमारी को ठीक कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है उससे? एग्जैक्टली, देयर यू फाइंड अ रोल। और आजकल आप जो ये ऑब्जर्व किए हो, इसमें रिसर्च गया, आपने देख लिया कि वो ठीक कर रहे हैं, कुछ लोगों को पॉजिटिव फीडबैक भी है, कुछ लोगों ने रेस्पॉन्स भी देखा है, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना। व्हाट वाज यूज्ड एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट it was beneficial to the patient is not documented anywhere, so there is a gap। अच्छा, जो कंपनी बेस्ड रिसर्च होती है या अमेरिका यूरोप से आ जाता है छपके, उसको हम फॉलो कर लगते हैं ब्लाइंडली। हमने अपनी जो, जैसे अब काउ यूरिन अर्क पर कितना डेफिशिएंसी है, रिसर्च पब्लिश नहीं हुई है। अभी मैं एक मिली थी, वैद्य हैं, उन्होंने कहा कि हम जो मेडिसिन होती है उनको काउ यूरिन अर्क से ट्रीट करके फिर देते हैं तो उसकी पोटेंसी 200 टाइम्स बढ़ जाती है और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। मेरे 6 पेशेंट ठीक हुए। मैंने कहा वेयर इज द एविडेंस? आप उन 6 पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट नंबर एटलीस्ट मुझे दो,
मैं उनसे पूछूंगी उन्होंने और क्या क्या लिया था, कितना कितना अमाउंट में दवा ली थी और कितने कितने अमाउंट में आपका दवा ली थी और कोई दवा ली थी. सो इट विल बी अ वेरी गुड सोर्स टू अदर्स टू फॉलो, है ना. रिसर्च प्रूफ से मुझे भी कन्विंसिंग लगता है दैट दीज इंडिजिनस हर्ब्स एंड मेडिसिन्स आर इफेक्टिव, बट देयर इज लैक ऑफ publications and lack of evidence. There comes your role. मैम प्रॉब्लम ये भी है ना कि कोई वो लोग को साथ नहीं देता है, मतलब कोई वो लोग का बात सुनता नहीं है कि हम लोग एक तो जादवपुर, यहाँ पे बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी जादवपुर, वहाँ पे एक हम लोग सेमिनार में गए थे, तो वहाँ पे एक वैद्य आए थे, तो वो खुद बोले थे कि हमको मतलब वो अमृता क्या नाम है, तीनों स्पोरा के बारे में बता रहे थे कि तीनों स्पोरा से ये सब फायदा होता है ना, और सब कुछ बताया. फिर उसके बाद बोले कि हम इसके बारे में बहुत पहले से जानते हैं, मतलब वो बहुत एजेड थे, वो बोले कि इसको हम बचपन से साथ जान रहे हैं, पर कोई हम लोग का बात नहीं सुनता है. वही कोई फॉरेन कंट्री बोल दे कि ये फायदा कर रहा है तो सब सुन लेगा, और हम लोग बोलेंगे तो कोई हम लोग का सपोर्ट भी नहीं करता, कोई सुनता भी नहीं है. तो हम कैसे प्रूव करें अपने बात को? हम लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है कि लिख के देंगे, मतलब वो हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग को उतना अक्षर का नॉलेज नहीं है, पर लोगों को नॉलेज है पत्ता का है, पेड़ का है, तो हम लोग को उसका नॉलेज है. तो वो ये बोल रहे थे, वो वैद्य थे वहां पे, हम लोग उनसे मिले थे, पर्सनली मिले थे, बहुत अच्छे थे वो, पर सही बात उनका नॉलेज हम लोग कोई यूज नहीं कर पा रहे हैं. यहीं पर आपका रोल आ गया ना. देखो जो चीज आप देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, दिस इंडिकेट्स कि आपको उस गैप को फिल करना है ना. उनको पता है पेशेंट्स को फायदा भी हो रहा है, यूज भी हो रहा है, एजेस से यूज हो रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है उसका इफेक्ट. तो आप अपने मॉडर्न मेथड्स ऑफ रिसर्च यूज करके उसको डॉक्यूमेंट करो. ये आपका बहुत बड़ा टास्क है, आप कर सकते हो उसको. आईसीएमआर ग्रांट देता है, फेलोशिप एडवर्टाइज होती है. आईसीएमआर की वेबसाइट देखना, डीएचआर, आईसीएमआर, डीबीटी, डीएसटी, ये सब ग्रांट देते हैं, फेलोशिप देते हैं. अपने ये साइट्स चेक करो क्या क्या वो मांगते हैं ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजी पर, वो सब तैयार करके रखो, ग्रांट के लिए अप्लाई करो, फेलोशिप लो, और उसमें कंटिजेंसी भी मिलती है, प्रोजेक्ट्स लिखो और ग्रांट लो और इन चीजों को प्रूव करो, है ना. मॉडर्न अगर आपको कोलेबोरेशन चाहिए एम्स से, आईआईटी से, और भी जहां पर कुछ मशीनें हो सकता है कि आपके इंस्टीट्यूट में ना हो, दूसरे इंस्टीट्यूट में हो, कोलेबोरेशन करके उनको रिसर्च कर सकते हो, तो कोलेबोरेटिव रिसर्च की प्रोजेक्ट बना सकते हो. अगर कुछ लगता है कि हाँ आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, एनिमल टेस्टिंग की नहीं है, या फलानी मशीन नहीं है, एचपीएलसी नहीं है, या डीप फ्रीजर, तो ये सब चीजें आपको दूसरे इंस्टीट्यूट से आपको कोलेबोरेशन करके मैं दिलवा सकती हूँ. जहाँ पे हमारा 450 बच्चों का काम चल रहा है, इनोवेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कैन कनेक्ट विद दोज पीपल. अभी मैं एक ग्रुप भी बना रही हूँ जिसमें हम ना रिसर्च प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या पब्लिश हुआ है, क्या नहीं पब्लिश हुआ है, कौन कौन हेल्प कर सकता है एक दूसरे से टीम अप करके और ज्यादा नई नई चीजों पर पब्लिश कर सकता है. नई नई चीजों तो आप बनाओगे उसको, है ना. हमारे यहाँ तो अभी पब्लिश नहीं है इसलिए उसको नहीं कह रहे हैं ना, अदरवाइज तो हमारे इंडिया में टाइम टेस्टेड है ये जो प्रैक्टिस हो रही है उनकी, बट उसको और रिफाइंड वे में, है ना. अब क्रूड फॉर्म में पता है हमें कि त्रिफला डेली खाने से 40 की एज हो गई है तो त्रिफला डेली खाने से आपको बॉडी बैलेंस में रहता है, बट हाउ मच त्रिफला अफेक्ट्स व्हाट बॉडी पैरामीटर, ये अभी पब्लिश नहीं है कहीं भी, है ना. आप 5 ग्राम त्रिफला डेली खाओगे या 2 गोली त्रिफला डेली खाओगे तो आपके किस पैरामीटर पे क्या असर आएगा, ये पब्लिश हो जाए तो कितना यूजफुल होगा 40 के ऊपर लोगों को हेल्थ बैलेंस मेंटेन करने में, है ना. जैसे बढ़ते बच्चों के लिए शंखपुष्पी और ब्राह्मी का रोल पता है हम लोग को, एज ओल्ड से पता है, लेकिन कितनी शंखपुष्पी और कितनी ब्राह्मी लेने से नर्वाइन टॉनिक की तरह काम करती है, क्या नर्वस सिस्टम के पैरामीटर्स अफेक्ट होते हैं, क्या शंखपुष्पी लेने से बोन के पैरामीटर्स अफेक्ट होते हैं, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च अभी इसमें बहुत लैक्यूना है, उसमें भी बहुत स्कोप है. देयर इज प्लेंटी ऑफ फील्ड जिसमें बहुत काम किया जा सकता है, और फ्रूटफुल रिसर्च करनी चाहिए. फाइंडिंग अ जीन और फाइंडिंग अ बायोमार्कर विच इज ऑफ नो यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस और इन डायरेक्ट प्रैक्टिकल यूज, वो थोड़ी सी यूजलेस सी रिसर्च लगती है मुझे ना. कॉपी पेस्ट टाइप के टॉपिक जो लेते हैं रिसर्च करने के लिए, वो इस तरह की रिसर्च करते हैं, उसको हम लोग रिजेक्ट भी करने लगे. इनोवेशन डिवीजन की जो मैं आईसीएमआर फंडिंग देखती हूँ उसमें हम इस तरह के कॉपी पेस्टेड रिसर्च को रिजेक्ट कर रहे हैं. ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए, कुछ ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, और डायरेक्ट बेनिफिट टू द पेशेंट होना चाहिए, है ना. क्लिनिकल इम्प्लीकेशन होना चाहिए, उसकी कोई यूटिलिटी होनी चाहिए, कोई पेटेंट वैल्यू होनी चाहिए कि आपने ये चीज निकाली कि भाई 5 ग्राम त्रिफला लेते हैं अगर डेली तो आपका मेटाबॉलिक पैरामीटर्स में या कॉर्टिसोल में या
कोई भी यू टेक इट नेचुरल किलर सेल्स में या साइटोकाइन में या इंटरल्यूकिन में कि ये फर्क आता है, देन यू कैन गेट कॉपीराइट ऑफ दैट डोज, है ना, 5 ग्राम डोज फॉर दिस मच इफेक्ट। पेटेंट करा सकते हो आप, जो भी चीजें पेटेंट नहीं हुई हैं उसको, उसके प्रोसेस की पेटेंट करा सकते हो कि हाउ प्रोसेस कैन बी इनोवेटिव एंड मोर इफेक्टिव, लाइक काउ यूरिन से ट्रीट करके क्या क्या इफेक्टिवनेस आ जाती है, तो यू कैन गेट पेटेंट और कॉपीराइट फॉर दैट आल्सो। ICMR आल्सो सपोर्ट्स पेटेंटिंग एंड कॉपीराइट एक्सपेंसेस, आपको फ्री में पेटेंट करा के और कॉपीराइट करा के देते हैं। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, यू कैन स्टार्ट योर ओन वेंचर, अपना खुद से कंपनी बना के शुरू कर सकते हो उस प्रोडक्ट को बेचना, और उसके सेलिंग पॉइंट आपका रहेगा, आपके नाम में पेटेंट है, आपने रिसर्च करके खुद ही प्रूव किया है। तो ये इस सब चीजों में ICMR भी हेल्प कर रहे हैं हमारे इनोवेशन डिवीजन से। ओके मैम, थैंक यू मैम। पर हम लोगों को तो पता नहीं था कि कोई हेल्प कर रहा है, कोई नहीं। हम एक टीचर से पूछे थे कि यहाँ कोई केमिकल्स वगैरह रहेगा और हमको रिसर्च करना होगा, तो हम मतलब पत्ता वगैरह रहेगा उसका हम रिसर्च करना होगा तो कैसे करेंगे। तो वो पहले तुमको केमिकल मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन पता करना है, कौन से केमिकल्स है इसमें, कौन कार्बोहाइड्रेट है क्या है, उसके बाद तुम कुछ कर पाओगी। वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, मतलब हमको सब कुछ का पता लगाना, मतलब एक लीफ लेके उसका हमको पूरा पता लग, क्रोमेटोग्राफी करना, NMR करना, वो तो इतना आसान नहीं है। ऊपर से हम लोग कॉलेज में इतना कुछ मतलब रहता भी नहीं है कि हम लोग कर सके। ऊपर से एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करना ही बंद करवा दिया गया है, वो भी नहीं होता। तो कोई भी रिसर्च कैसे करेंगे, मतलब अपने ऊपर तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कुछ करते ही नहीं, खाली किताब का पढ़ते हैं और तब सुन के फिर छोड़ देते हैं, इसीलिए कुछ आगे कर ही नहीं पाते हैं। मल्टीपल बुक्स पढ़ो, रिसर्च पढ़ो, सो यू कैन एटलीस्ट मेक कॉन्सेप्ट्स, है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, योर डिग्री, यू कैन अप्लाई फॉर फेलोशिप्स एंड योर ad hoc grant for research projects. During studies you can read many books, है ना, many reference book, and also read research. So अभी जो स्टूडेंट लाइफ में आप कर सकते हो, सीधे रिसर्च पे पॉसिबल नहीं होगा, हो सकता है कुछ मशीन्स नहीं है या ये नहीं है वो नहीं, उसके लिए पैसे नहीं है। तो ये चीज आप पढ़ाई खत्म करने के बाद जब फेलोशिप के लिए अप्लाई करोगे या एड हॉक प्रोजेक्ट से फंडिंग के लिए अप्लाई करोगे, देयर आर 6-7 फंडिंग एजेंसीज इंडियन गवर्नमेंट की। ICMR इज वन ऑफ देम, DHR, DBT, DST एंड बायरक भी अभी है, और CSIR है। So these are the funding opportunities. These agencies give funds. So you can also always explore these funding opportunities to complete your ideas, ना, to establish your idea. And patent आपका target होना चाहिए कि आपको ये product बना के उसका patent कराना है और market में लाना है उसको। थैंक यू मैम। okay, thank you Raksha. Okay, let's conclude the today's webinar, as we are evidence for today's webinar on women health awareness was full of knowledge and information. It shared insights into the topic breast cancer and pregnancy. Now I would like to invite our principal, Sir, 17 Dr. December. Neeraj Kant Sharma. who NPTEL would- exam sir मेरा NPTEL exam था NPTEL। Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, good afternoon. Hello, ma'am. Good afternoon, everyone present over here for this seminar. I have seen that almost more than 50 students and faculty members have joined this seminar, and I'm sure they will be benefited about for this the information given in this webinar. And I thank all the students and the faculty members, as well as all the other the persons who are attending from the farther places for attending this webinar. I especially thank Dr. Needa Kuwar for enlightening us with her knowledge, and it was such an insightful information about the several cancers that means the woman faces, especially in their lifetime. And I must say that the lecture is full of knowledge, and several interesting facts were discussed by Dr. Neeta. Like I was amazed to know that there were 4 sources of energy. I didn't know about that actually. So I am also benefited with this lecture, and I'm pretty sure that the precious knowledge provided by Dr. Neeta that she delivered will definitely help our students, especially the female faculty members and the students, and they will be benefited in their lifetime for attending this webinar.
And I once again then thank Dr. Neeta Kumar for providing us with her words of golden words. And I especially also thank Ms. Seetal and Mr. Ayush Singhal for arranging this special webinar for our students as well as faculty members. And it was a wonderful experience listening to her, madam. Thank you. Thank you, Professor Sharma, and especially thanking Dr. Sheetal to provide me this opportunity. I forgot to put my gratefulness. Thank you so much, so very much. I also expect your cooperation with us in future and also, madam. Sure, sir. Sure, sir. I will share links and various schemes, funding as well as research schemes, various programs we run online, offline. I will share all this information with Dr. Sheetal in future also. Thank you, Sharma, sir. Thank you. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, over to Ms. Seetal. Thank you, ma'am, for the today's webinar and especially the vast knowledge about the different type of energy sources. We'll continue your cooperation in this regard in the further lecture as well. So kindly bless us with your knowledge and recent experiments. Thank you, ma'am. Please, audience, the feedback form is shared to you. Kindly fill the feedback form in the chat box. Thank you, ma'am. Good evening. Thank you, teachers. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, 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 ma'am.